अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िया अब्बास और आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ होंगे स्कॉट मैक्लेलन, वाइस प्रेसिडेंट है प्लाजा के। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और हमारी बातचीत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये है कि रिसेंटली टोरंटो इज़ डेजिग्नेटेड एज टॉप नंबर 1 सिटी वर्ल्ड वाइड एज पर इकोनॉमिक स्टडी। उसका क्या इम्पैक्ट होगा टोरंटो पे और स्पेशली रियल एस्टेट पे, ये हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे अमीन नूरानी, हमारे सेकंड गेस्ट। उनसे आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी बात होगी वो होल्डिंग कंपनी पे होगी कि होल्डिंग कंपनी में प्रॉपर्टीज़ लेने के क्या फ़ायदे हैं। बोर्ड पे मैं आपके सामने हूँगा और बोर्ड पे आपके लिए एक सरप्राइज़ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कैनेडियन रियल एस्टेट 25% लेस प्राइस पे अवेलेबल है। कैसे है ये बोर्ड आप ज़रूर देखें। यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट गेस्ट की तरफ, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्कॉट मैक्लेलन है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्लाजा। इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ मार्केट नॉलेज इनसे लेंगे और रिसेंटली जो अब कुछ सर्टेन न्यूज़ आए हैं वो भी इनके साथ डिस्कस करेंगे। स्कॉट, हाउ आर यू? Great, Zia. How are you? Welcome on board. Thanks. Great excitement news for Toronto, for us, for everyone, for Canada. Toronto designated as top number 1 city worldwide. That is an absolute honor for everybody in our city that participates in the business community, that lives here, that inspires to live here. It's just it's great news, and that the criteria that you have to have and what you have to be able to do to be ranked as the number 1 city is a real tribute, and it's great news for everybody in our industry as well, Zia. Seeing Toronto right on top number 1, but there are an amazing cities, unbelievable cities, but you can see their numbers right at the bottom, maybe number 10, 9, 8, 7. It is indeed a great news. It's a great news for Canada as well, because the top 2 cities are from Canada. Toronto is number 1, Montreal is number 2. There must be a lot of check marks, a lot of elements based on that this city became number 1. Yeah, sure. And you know what, with our dollar where it is today, Yes. You wonder if foreign investment and people that are actually looking to make business decisions in our country and see where our cities are ranked and understand that, our doors are open and that we are a city that shares so many different cultures that when you actually come here from other countries, you feel quite at home. You wonder if all of those components are going to be major economic drivers for our country and in particular our city in the immediate future. Is it true to say today Canadian real estate is less 25% for foreign investors because of the currency fluctuation? It's easy to say that. Yeah. Somebody that was looking to make a buying decision, maybe they had a family member coming to study at U of T, or maybe they're planning on coming here in a few years and they saw a location that they really wanted 2 or 3 years ago. Yeah, 20 to 25% with the dollar and the exchange factor makes things even more inviting for us. And our interest rates have gone down again. So I think the real estate market and in particular the condominium market in the Toronto area has positioned itself once again to be strong for 2015. Foreign investors has only one question all the time. What about rental if we buy? I guess the 2014 numbers are the best platform for them to crunch and see what happened. The rental went 15% up in 2014 if you compare with 2013. Yeah, and that's because of the closings. So there were something like 21,000 condominium units that closed in the Greater Toronto area, which, if you took on an average of 30% rentals that are part of that 21,000 units that have closed, there are going to be more opportunities for rentals in brand new condominiums. So the numbers did in fact go up, and the numbers are still not meeting the demand, Zia. So it's interesting that people still want to invest here, people still want to make long-term buying decisions here, and they're doing it because our market is strong and we still have a demand. And we may end up with a housing shortage in the next 15 to 20 years based on some of the forecasts that are out there. 2015, I know lots of demand, energy is there, vibe is there, but number of projects are not up to that extent. So what would be a Plaza's
strategy for 2015 when it comes to a new construction sites? Well, last year we were about 4 to 5% market share of the 22,000 units that were sold in the Toronto area. So Plaza's numbers were well over 900 sales in a very competitive marketplace. The marketplace is going to become more competitive this year because there are going to be less launches. So we had 2 launches last year, our 50 Wellesley project and our 1 Yorkville project. This year we could have anywhere between 2 and 4 launches depending on where our projects are going to be in the cycle with respect to, you know, getting our zoning requirements and those sorts of things done. But we think we're very well positioned. We took a hard look at where we were going to be in 2015 back in 2011. So we started looking at areas where close to subways and close to universities and close to area amenities that are going to be paramount for the purchasers. And we identified a really interesting location at Highway 7 in Jane. So our Met project is going to be right across the street from the new subway station that's going to open at the beginning of 16, and that is scheduled and it's well underway, and what we've been hearing from the TTC is that it is on schedule. So that's a very exciting opportunity for people that need to get into the downtown core but maybe want to still live in Vaughan, and for people that might be going to York University and looking at a brand new condominium as a housing option, same way that people look at condominium opportunities in Toronto if they're at Ryerson or the University of Toronto. Our other projects that we're looking at opening this year would be our Widmer and Adelaide project, which is right in the entertainment district. Exactly, yes. Another area that is, I mean, I don't know if there's a better area with respect to being in the entertainment district with restaurants and you know, you've got the Sky Dome and so many other opportunities that exist there. Easy walk into the downtown core, easy walk into the path system. So those are 2 projects that we're very, very excited about, and we think we can get into the marketplace. We're hoping to have our 170 Spadina project, which is Spadina and Queen, into the marketplace. Again, easy walk into the downtown core. There's a whole element of buyers that are new to the sort of lower west side, maybe a little bit north and a little bit east of Liberty Village and the waterfront. But Spadina has become a market of its own, and we're quite excited about those 3 particular projects being introduced to the marketplace during the 2015 calendar. It definitely will be a busy year for you guys on these new launches, but in the same token, you guys are completing 2 of your buildings, Ivory and York Harbor Club. And I would like to congratulate Plaza, you in special, especially you, in a sense that a lot of positive feedback from your customer service, and the investors, the purchasers who bought it, they are quite happy with the buildings. How important it is for Plaza to take care of the customer service? It's the most important. Okay. We actually look at our marketing program, and our marketing program, we can talk about ads and we can talk about television commercials and we can have, you know, beautiful sales offices with great renderings, and that is going to sell, and our locations, that certainly will sell you the first time, but the repeat buyer will come through our customer care initiatives, the way that they're treated, the way that they're managed through the process. It's 3 years, Zia, from the time you buy until the time you actually occupy. How do we treat people during that 3 years? Do we communicate with them? Do we have functions for them? Is our door always open for them? And the answer is yes to all the above. We want them to move into a hotel-ready, zero-deficiency atmosphere. We're still in a lot of projects when you first move in, there's phases of construction. Our goal is to have you move in to a building where you really don't see any of that and manage you through the process. And guess what? You're gonna love that experience so much that you're gonna tell friends, or you're gonna make a second buying decision and it's gonna be with us. Again, we become top of mind. And I'm glad you recognize that. I'm delighted to hear that your purchasers recognize that. It's the thing we work hardest on in our company, is to make sure that our customer is managed properly and that we continue to raise the expectation level in terms of what they require, and we have to meet it and exceed it on every one of our projects. Great, Scott, thank you very much. And yes, indeed, it's you guys do deserve for that section, which you guys took care so well. Once again, congratulations. Thank you. And I always say one thing: if you want to know builders
like depth in terms of commitment, do complete a cycle with them, and then you would understand everything. Thank you once again. नाज़रीन, जैसे आपने देखा, स्कॉट ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लाजा कि अगर किसी बिल्डर के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर सर्विस नहीं है तो इट्स नथिंग, क्योंकि सेल करेंगे उसके बाद उसको टेक केयर नहीं करेंगे तो ये कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी परचेजर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस। जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मोजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए। रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक। थैंक यू। रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें। ट्रिब्यूट कम्युनिटीज आपके ख्वाबों की ताबीर में पेश एक ऐसा घर जो डिज़ाइन और फितरत का इम्तिजाज हो, एक ऐसी जगह जो परवरिश, शौक़ी और तफरी से लबरेज हो, जहां जिंदगी के बेहतरीन लम्हात यकजा हों। GTA बिल्डर के साथ काम करने पर आला और उम्दा खिदमात के एतराफ़ में JD पावर अवार्ड हासिल करने वाले ट्रिब्यूट कम्युनिटीज। काम, खेल और लगन, जब आप घर की तरफ आते हैं तो जिंदगी भी आपके साथ आती है। किंग एंड जॉन में रिहाइश रखी है जो कॉन्डोज, मकानात, दुकानें, सब्जाजार और दीगर सहूलियात से आरास्ता है। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए garrisonpoint.ca। ABN एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, CPAs आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। दो दहाइयों पर मुईद बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा। जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। हम आपको कॉर्पोरेट लॉ, गैर मुजरमाना अदालती मुकदमात, सिविल लिटिगेशन और रियल एस्टेट में कानूनी मदद फराम करते हैं। हम टोरंटो के वकील हैं। कारोबार के कानूनी मशवरों के लिए हमसे रुजू करें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ अमीन नूरानी है ABN कॉरपोरेशन से। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको भी अशद जो है ना इंतज़ार होता है कि अमीन भाई आएँ और उनसे बहुत से सवालात हम करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होल्डिंग कंपनी पे है कि प्रॉपर्टी अगर होल्डिंग कंपनी पे लिया जाए इंस्टेड ऑफ पर्सनल नेम तो उसके क्या फ़वायद है। आज हम अमीन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आप आएँ। जैसे एवरी एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जो ईमेल्स के थ्रू हमें मिलते हैं। एक बड़ा डाउट है इन्वेस्टर्स के बीच में कि प्रॉपर्टी क्या पर्सनल नाम पे लिया जाए या फिर होल्डिंग कंपनी पे लिया जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है और इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा देना चाहिए? ज़िया, आज हम होल्डिंग कंपनी के हवाले से बात करेंगे और आई एम श्योर कि इट इज़ नॉर्मल परसेप्शन अबाउट द होल्डिंग कंपनी के एक बड़ा हवा है कि होल्डिंग कंपनी होती क्या है। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि होल्डिंग कंपनी है क्या चीज़। जी, होल्डिंग कंपनी जो है वो दैट इज़ इन बिटवीन इंडिविजुअल शेयर होल्डर एंड द ऑपरेटिंग कंपनी। ओके। उसके बीच में जो एक कंपनी को, एक लेयर को जो कायम किया जाता है
उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स के शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड करता, बल्कि वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स ओन करता है, और होल्डिंग कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग कंपनी के अंदर शेयर्स ओन करती है। और तो दैट इज़ बेसिकली द होल्डिंग कंपनी इज। क्यों की जाती है, उसके अपने बड़े बेनिफिट्स है, और स्पेशली कनाडा के अंदर देयर आर लॉट ऑफ टैक्स अपॉर्चुनिटीज़। बिसाइड्स टैक्स अपॉर्चुनिटीज़ उसके और भी फ़वाइद है जो कि हम डिस्कस करते हैं। सो होल्डिंग कंपनी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इन कनाडा इंटर कंपनी डिविडेंड्स जो देते हैं दैट इज़ टैक्स फ्री। अगर आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है अगर किसी कंपनी के अंदर, अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ऑल्दो आपको डिविडेंड टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, मगर बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन लॉ के हिसाब से आपको जो डिविडेंड होता है वो आपके पर्सनल टैक्स के ऊपर, पर्सनल टैक्स रेट जो होता है उस पर आपको डिविडेंड देना पड़ता है। बिटवीन द इंटर कंपनी डिविडेंड्स बिटवीन द ऑपरेटिंग कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी, डिविडेंड्स आर टैक्स फ्री। सो उसकी वजह से आपको टैक्स डेफरल की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके अलावा आपको टैक्स सेविंग्स भी होता है। टैक्स डेफरल की इसलिए अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब आप एक कंपनी से, ऑपरेटिंग कंपनी से होल्डिंग कंपनी पर जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, और फिर आप तो दैट इज द टैक्स डिफरल आपका हो जाता है। और टैक्स सेविंग्स इस सिचुएशन में होती है कि जब आप रिटायर होते हैं तो उस सिचुएशन के पास आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अपनी होल्डिंग कंपनी से तो उस वक्त आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपकी एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट कम होती है, जिसके बेसिस पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं और आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो दैट इज़ टैक्स डिफरल और टैक्स सेविंग्स। उसके अलावा द बिगेस्ट एडवांटेज ऑल्सो अवेलेबल इज़ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा के अंदर वन टाइम कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अलाउड है $800,000 पे, CCPC पे, कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉरपोरेशन पे। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो स्मॉल जो बिजनेस होता है वो CCPC होना चाहिए, दैट इज कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉरपोरेशन, और प्लस उसके जो एक्टिव बिजनेस के जो एसेट्स है वो 90% ऑफ द एसेट्स होता है। सो होल्डिंग कंपनी इज नॉट ओनली द टैक्स अपॉर्चुनिटी, बल्कि अब ज़रूरत बन गई है अगर आपके पास एक्सेस फंड्स मौजूद है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपको होल्डिंग कंपनी करना लाजमन हो गया। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको फ्यूचर में नुकसानात हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आपके पास एक्सेस फंड होता है तो आप अपना एक्सेस फंड इंटर कंपनी डिविडेंड के बेसिस पे आप अपनी होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन की रिक्वायरमेंट है उसके विद इन आप रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, और अगर आप फ्यूचर में कंपनी बेचते हैं तो वो आपकी $800,000 का कैपिटल वन टाइम गेन एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप कंपनी बेचते हैं तो बाज़ दफ़ा अगर आपके लिक्विड एसेट्स उस कंपनी में पड़े होते हैं या दूसरे एसेट्स पड़े होते हैं तो जो ख़रीदने वाला होता है उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके बिजनेस के एसेट्स खरीद सके। तो जब आप अपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं होल्डिंग कंपनी के अंदर तो फिर वो बाहर की रीच के अंदर आ जाता है, खरीद सकते हैं। उसके अलावा इनकम स्प्लिटिंग का भी एडवांटेजेस मौजूद है होल्डिंग कंपनी के अंदर, कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बना लेते हैं। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उनका, क्योंकि अगर वो 18 साल से ऊपर के शेयर होल्डर्स है तो उनकी इनकम सिर्फ अगर उसी डिविडेंड से आ रही है या किसी और जगह से आ रही है, अगर इनकम कम हो तो आपके जो है वो टैक्स इनकम स्प्लिटिंग का एडवांटेज आपको मिलता है। अनदर द एडवांटेज विच इज़ नॉट टैक्स बेनिफिट बट इज़ एन एसेट प्रोटेक्शन। खुदा न खास्ता अगर आपकी ऑपरेटिंग कंपनी के अंदर कोई टैक्स लॉस हो जाता है या किसी किस्म का कोई नागहानी सिचुएशन की वजह से बैंक्रप्सी सिचुएशन आ जाती है तो आपके एसेट जो है वो जो लिटिगेशन के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं आप। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इस वजह से इट इज़ बेनिफिशियल कि अगर आपके पास बिजनेस के अंदर, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के अंदर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप होल्डिंग कंपनी में करें, ना कि ऑपरेटिंग कंपनी में करें। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी उस हवाले से नज़र आती है जब आपके पास दूसरी ऑपरेटिंग कंपनी होती है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच अमीन भाई, आपने बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज दी होल्डिंग कंपनी के हवाले से, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दे डोंट नो अबाउट दैट। आने वाले एपिसोड में हम अपने सवालात पिक करेंगे जो हमें ईमेल्स में मिलते हैं। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी इस मुल्क में कितना ज़रूरी है, इसको ज़रूर और स्टडी करें, और अगर आपने सर्विसेज लेने हैं तो गिव अ कॉल टू अप्रोप्रिएट पीपल
ताकि वहाँ से आपको ये गाइडलाइन ऑल भी इन डेप्थ मिले। यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बोर्ड की तरफ। जस्ट स्टे विद अस। नाज़रीन, आज हमारे बोर्ड के सेक्शन में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, बल्कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि कैनेडियन रियल एस्टेट इज़ अवेलेबल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर लेस 25%, यानी कि आज वो आपको 25% सेल पे मिल रही है। ये कैसे है, इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा ना कि किल 2 birds विथ 1 शॉट। वो कैसे? नंबर 1, एक तो करेंसी फ्लक्चुएशन है, 25% लेस वीक कैनेडियन डॉलर है, और उसके ऊपर टोरंटो बिकम सिटी लाइक यू नो टू लिव इन, जो कि टॉप नंबर 1 वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड में जो रैंकिंग आई है अभी रिसेंटली, उस पर टोरंटो राइट ऑन टॉप है। ये कनाडा के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये टोरंटो के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर हम डिस्कस करें कि कैनेडियन रियल estate is for sale, ठीक है, up to 25%, ठीक है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, हाउ। आपने सुना होगा कि ऑयल की प्राइस ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह कैनेडियन डॉलर काफ़ी वीक हुआ। अब कितना वीक हुआ, अगर आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट देखें तो इस वक्त आज की जो नंबर्स हैं वो अबाउट 25-26% है। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त दुनिया के किसी कोनों में बैठे हैं, या फिर अगर लोकल इन्वेस्टर भी बैठे हैं और उनका अपना जो पैसा है वो कैनेडियन डॉलर में नहीं है, फॉरेन करेंसी में है, यूएस में है, यूरो में है, किसी भी लेकिन वो फॉर्म में है, उनके लिए आज अगर वो कनाडा पैसे लेके आते हैं तो रियल एस्टेट वो ख़रीदेंगे 25% मिनिमम लेस प्राइस पर। और ये अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आती, वंस इन अ वाइल। शायद आज हो, कल ना हो, परसों शायद उससे कहीं ज़्यादा हो, इट ऑल डिपेंड्स। आपने ये देखना है कि आपने अपने कार्ड्स किस तरह प्ले करने और कब प्ले करना है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि टोरंटो जो है वो नंबर 1 सिटी डेजिग्नेट हुआ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो ये एक और बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह लेके आ रहे हैं जहां पर आपके पास रूम क्रिएट हुआ 25%। देखें 25%, अगर देखें 0% to 25%, दैट्स अ ग्रेट रूम, ठीक है ना, जिसमें आपने इस रूम में प्ले करना है। दूसरी चीज़, अगर आप 2014-15 के नंबर्स देखें जो टोरंटो रियल एस्टेट में हाइप हुए हैं, ठीक है ना, तो मिनिमम भी मेरे ख्याल में आपको बॉटम लाइन नंबर भी मिलेगा तो वो भी 5% से ज़्यादा है। अगर आपने आके प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट की है, 20% डिपॉजिट 1.5 साल में आपने दिया है, तो आप देखें कि उस पे भी आपका रिटर्न अप्रॉक्स डबल फिगर पे आना चाहिए इफ़ द मार्केट फोर्सेस आर राइट। तो ये आपके लिए डबल एंड है। नंबर 1 एक ऐसे सिटी में जहाँ जिसकी रैंकिंग नंबर 1 आई है वर्ल्ड वाइड। दूसरी बात 25% लाइक यू नो वीक डॉलर वैल्यू की वजह से, कैनेडियन डॉलर वैल्यू की वजह से। और तीसरी चीज़, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में ये इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी रियल एस्टेट फॉर्म में आप करते हैं, तो डिपेंडिंग कि आपने अपना पाथ किस तरह सेट करना, उस पे बेस्ड करके ये आपके रिटर्न्स हैं। अगर आप देखें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कब कैसे ओपन होते हैं, वंस इन अ वाइल, जिसे नहीं कहते लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे ऑयल की प्राइस नीचे आई है, ठीक है, तो ये मार्केट ओपन हुई है बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑयल की वजह से जो वीकेंड डॉलर है या रियल एस्टेट में जो रूम क्रिएट हो रहा है वहाँ जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है आफ्टर ऑल, जहाँ आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, इन्वेस्टमेंट को डबल नहीं करते, बट देयर इज़ अ लॉट टू लर्न आउट ऑफ दिस प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट में आप प्रोसेस से बहुत कुछ सीखते हैं और आपको सीखना भी चाहिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी डायरेक्शन है वो राइट सिम, राइट एंगल, राइट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। उसके लिए आपने राइट टीम के साथ काम करना है, राइट लोगों के साथ काम करना है, ताकि आपका फोकस डाइवर्ट ना हो और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास आपको जो मिला है विंडो, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्टे विद अस।
जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मोजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए। रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक। थैंक यू। रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें। हम आपको कॉर्पोरेट लॉ, गैर मुजरमाना अदालती मुकदमात, सिविल लिटिगेशन और रियल एस्टेट में कानूनी मदद फराहम करते हैं। हम टोरंटो के वकील हैं। कारोबार के कानूनी मशवरों के लिए हमसे रुजू करें। ट्रिब्यूट कम्युनिटीज आपके ख्वाबों की ताबीर में पेश एक ऐसा घर जो डिज़ाइन और फितरत का इम्तिजाज हो, एक ऐसी जगह जो परवरिश, शौक़ी और तफरी से लबरेज हो, जहां जिंदगी के बेहतरीन लम्हात यकजा हों। GTA बिल्डर के साथ काम करने पर आला और उम्दा खिदमात के एतराफ़ में JD पावर अवार्ड हासिल करने वाले ट्रिब्यूट कम्युनिटीज। One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. Welcome back. Today I want to speak to you a little bit about pre-construction and the difference between an interim occupancy closing and a full registration closing. A lot of our clients do invest in pre-construction, and it's important to understand the difference between the two. So, the first step is your interim occupancy closing. This is when the developer releases the keys to you and you take full occupancy. During this time, it could be 3 to 6 months that you're waiting for the final closing, and you are also forced to pay something called your interim occupancy fees, or sometimes they call it a phantom mortgage. Now, the phantom mortgage is based on your estimated property tax, your estimated maintenance fees, and the estimated interest on the balance owing. This together comes up with a monthly fee. Now, once you have been acknowledged that you're going to have your full closing, these fees stop and you actually do a full closing, which is very similar to what you would do in a resale. You would assume a mortgage or pay off the balance owing and become the full owner. This is something that everyone who is investing in condominiums in Toronto have to go through. You have to do an interim occupancy closing according to Ontario. I hope that this does help you and that the tip does make it a little bit clearer for you. Back to you, Zia. नाज़रीन, आपने हमारा एपिसोड देखा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। स्कॉट ने बहुत ही इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन दी। एक जो अच्छी बात उन्होंने की, अभी रिसेंटली टोरंटो डेजिग्नेट हुआ एज अ टॉप नंबर 1 सिटी वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए, कनाडा के लिए, टोरंटो के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, यहाँ की इकॉनमी के लिए, यहाँ के रियल एस्टेट के लिए। साथ में उन्होंने आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताया कि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो 14 में क्या था और अब उसका इम्पैक्ट 15 में किस तरह हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। अमीन नूरानी से हमारी बात हुई है, उन्होंने आपको फ़वाइद बताएं होल्डिंग कंपनी के कि जी होल्डिंग कंपनी में प्रॉपर्टीज़ लेने के क्या क्या फ़वाइद है। और बोर्ड पे जैसे मैंने आपको समझाया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डिस्पाइट कि टोरंटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ आपको रियल एस्टेट लेस 25% पे मिलेगा। उसकी वजह कैनेडियन जो फ्लक्चुएशन है करेंसी में, उसकी वजह से है। अपने ईमेल, अपने सवालात, अपने फीडबैक ज़रूर हमें भेजा करें। यकीन करें कि उन्हीं से हमारे प्रोग्राम की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और जो हमारे सवालात हैं वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से वो सवाल भी बनता है और उसका जवाब भी आपको इस प्रोग्राम में मिलता है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।